कुल्टी में गोली मारकर परेश मरांडी की हत्या के मात्र 2 दिन में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पत्नी मंगली मरांडी ने परेश की सभी चल और अचल संपत्ति के लिए बिहार के एक शार्प शूटर को अपने पति की हत्या करने के लिए सुपारी दी थी। किराए के शूटर ने परेश की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 14 दिन की रिमांड पर लिया है। डीसीपी अभिषेक मोदी ने कहा कि ईसीएल कार्यरत परेश मरांडी की हत्या के मामले में मृतक की पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरी साजिश के मुख्य साजिशकर्ता मंगली मरांडी, विकी नोनिया और संदीप नोनिया है। विकी और संदीप ने श्रीपुर के विशाल पासवान के माध्यम से शूटर से संपर्क किया था। मुंगेर का शूटर परेश को 2.5 लाख रुपए में मारने के लिए तैयार हो गया। 20,000 रुपए एडवांस में भी दिए गए। मंगली से 20,000 रुपए लेकर संदीप नोनिया ने विशाल पासवान नाम के एक और बदमाश से संपर्क किया। वह बिहार से किराए का शूटर लेकर आया था। बुधवार की सुबह शूटर ने परेश की हत्या कर दी और विशाल को लेकर फरार हो गया। हालांकि घटना में विशाल और 3 अन्य को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन किराए का शूटर अभी तक नहीं मिला है। आरोपियों के पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए तमंचा, एक बाइक, एक स्कूटर बरामद किया गया। गौरतलब है कि मंगलवार को कुल्टी के शीतलपुर निवासी परेश मरांडी की किसी ने 3 गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी जब परेश मरांडी तुलसी हिड़ में अपने अस्थायी काम के दौरान सुस्ताने के लिए एक झोपड़ी में बैठे थे। এটা এই মাসে 5 তারিখ থেকে ওরা প্ল্যানিং করে। বিকি নুনিয়া ওদের একটা বন্ধু আছে সন্দীপ নুনিয়া, ওকে এটা প্রকাশ করে কি এরকম একটা সমস্যা আছে, এটাকে কীভাবে সমাধান করা যায়। এটাতে मंगली मांडी जो वाइफ আছে ডিসিজড ওয়াইফ, ওর এটাতে 2.5 লাখ টাকাটা এটা বলে কি এটা আমি দেবো। তারপরে যখন এরকম অ্যামাউন্ট ওরা পায় সন্দীপ নুনিয়া, ওর একটা ওর বন্ধু আছে বিশাল পাসওয়ান, ওর শীতলপুর বাড়িকে ওরা বলে কি এরকম কাজ করতে হবে। বিশাল পাসওয়ান একটা ওর আবার একটা বন্ধু আছে হিমাংশু পাসওয়ান, ওর মুঙ্গেরে বাড়ি, ওকে অ্যাপ্রোচ করে। ওখানে ওদের নানি ঘর ছিল, ওখানে ওদের আগে থেকেই একটা কন্ট্যাক্ট ছিল। হিমাংশু পাসওয়ানকে ওরা কন্ট্যাক্ট করে কি এরকম কাজ আছে, এটা করতে হবে। এটাই আপনার নেক্সট 10 डेज 15 তারিখে मतलब শনিবার হিমাংশু পাসওয়ান বাই ট্রেন এখানে আসে। সন্দীপ নুনিয়া ওকে শীতলপুর রেলওয়ে স্টেশনে রিসিভ করে ওকে নিজের বাড়িতে রাখে। নেক্সট 2-3 দিন ওরা এটাতে ট্র্যাকি করে কীভাবে কাজটাকে করবে। এটা ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট, এটা মঙ্গলবার 18 তারিখে বিকালবেলা যখন ও মাঠে বসেছিল ডিসিজ, তখন একটা ফার্স্ট অ্যাটেম্প্ট নেয়। पर चूँकि ওখানে ছেলেগুলো খেলছিল ওরা করতে পায়নি। আবার সকালবেলা 19 তারিখে সকালবেলা ওরা যখন খবর পায়, मंगली मांडी खबर दें कि हाँ ওরা দোকানে বসে আছে, তখন সন্দীপ নুনিয়া और হিমাংশু পাসওয়ান ও दोनों টোটোতে আসে, এসে ও কাজটা করে। और যখন এরা কাজটা করে পালিয়ে যাচ্ছে, তখন বিশাল পাসওয়ান ওর নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে এই দুজনকে রিসিভ করে और ওখান থেকে বেরিয়ে যায়। এই কেসে এরা 4টাই আসামি ধরা পড়েছে। 4টাই আসামি স্বীকার করেছে পুলিশের সামনে कि हाँ ওরা করেছে। ওদের কাছ থেকে जो अपराधे जो মোটরসাইকেল ব্যবহার হয়েছে, স্কুটি ব্যবহার হয়েছে, ইনক্লুডিং আর্মস जो ব্যবহার হয়েছে, ওটা উদ্ধার হয়েছে। কটা আর্মস পাওয়া গেছে? দুটো। একটা আর্মস পাওয়া গেছে, ইনক্লুডিং 1 ম্যাগাজিন ওরা পাওয়া গেছে। বলছি ওরা ভিতরে বলছে যে 20,000 টাকা নাকি অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল, সেটা কি অ্যাডভান্স দেওয়া হয়েছিল, ওটা এখন পর্যন্ত ওরা রিকভারি করেনি, পুলিশ করতে পায়নি, ওটা রিকভারি করার চেষ্টা। আর হিমাংশু পাসওয়ানকে কি আপনারা কোনো পেয়েছেন? হিমাংশু পাসওয়ান আমি ওটা খোঁজ লাগাচ্ছি, ওটাকে তাড়াতাড়ি ধরা হবে, ওকেও এই কেসে এনশোর করা হবে কি ও সঙ্গে চার্জশিট হয়। যে বিকি তারপরে বিশাল, এদের কোনো প্রিভিয়াস কোনো ট্র্যাক রেকর্ড আছে নাকি ক্রাইমে? विकी और विशाल কোনো ট্র্যাক রেকর্ড নেই। এটা জাস্ট পার্ট অফ मतलब এরা প্ল্যান করেছিল, তখন এরা একজনকে বাইরে থেকে নিয়ে এসে কাজটা করেছে। এটা টাকা লোভে এটা করেছে। এটা ওদের কোনো এখন পর্যন্ত ক্রিমিনাল कौन बोला मर्डर करने के लिए? उसका बीवी। किस लिए? पता नहीं किस लिए, हमको बोला बस पैसा देगा। कितना पैसा बात हुआ था? 2.5 लाख। हाँ, 2.5 लाख। कितना पैसा मिला है? 20,000। बाकी पैसा नहीं मिला? नहीं। आर्म्स कहाँ मिला तुम लोग को? वही बिहार से जो आया था वही लेके आया था। पहचान था बिहार से लेकर आया था? हाँ हाँ, हाँ। क्या नाम है? हिमांशु। हाँ, हिमांशु हिमांशु क्या? पासवान। कहाँ का रहता है? बिहार का कहाँ का रहने वाला है? हाँ, मुंगेर। भाग गया? क्या क्या चीज़ से भागा? बस टेम्पो है, यही सब से। तुम लोग को क्या पकड़ा? तुम लोग को क्या पकड़ा? तुम लोग किया था? हाँ, तुम लोग को क्या पकड़ा? साथ दिए थे। কি মেরেছে? हमने मरा। कौन मारा है? जो मारा वो बिहार चला गया। बिहार चला गया? तुम लोग साथ में था क्या? बस साथ दिए थे। साथ दिया था।
कितना रुपये में बात हुआ था तुम लोग को? 2.5 लाख। 2.5 लाख। तो कितना आदमी था तुम लोग एक साथ में? हम थे और जो बिहार भाग के गया वो। तुम्हारा नाम क्या है? संदीप संजय लोनिया। संजय मोनिया। कहाँ रहता तुम? राधानगर। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। हालांकि आसनसोल नगर निगम चुनाव की तिथि 22 जनवरी से बढ़ाकर 12 फरवरी कर दी गई है और ऐसे में चुनावी मैदान में चल रही राजनीतिक रणनीति में दिलचस्प दिनों में इजाफा हो गया है और अब कुछ दिन और किसी न किसी मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के उम्मीदवार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आएंगे, जैसा कि वार्ड नंबर 44 में देखने को मिला, जहां आसनसोल नगर निगम के पूर्व चेयरपर्सन अमरनाथ चटर्जी तृणमूल कांग्रेस से और उनके विपक्ष से शिव प्रसाद वर्मन बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार के तौर पर एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच विवाद देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को एनएस रोड की मरम्मत को लेकर ऐसा ही एक विवाद देखने को मिला। एनएस रोड की सड़क पर मरम्मत का कार्य चल रहा था। उस वक्त बीजेपी के पार्षद उम्मीदवार शिव प्रसाद वर्मन ने इसका विरोध किया और कहा कि चुनाव के दौरान सड़क की मरम्मत का काम करवाकर जनता का फायदा उठाया जा रहा है, जो कि चुनाव के नियमों के खिलाफ है। उन्होंने सड़क के मरम्मत के काम को रुकवा दिया, जिसका विरोध वहां के स्थानीय टीएमसी कार्यकर्ता राकेश केडिया ने किया। फिर क्या दिक्कत हो रही है? मैं बता रहा हूँ, ये वर्क ऑर्डर जो है बगल में जो रास्ता बना था, साइड का फुटपाथ का ढलाई करने का इसके ऊपर ऑर्डर है। ये पर्टिकुलर ये जब टूटा था 6 महीना हो गया, पानी बारिश आई थी उस समय टूट गया था, उसी समय ये लोग का काम करवा लेना चाहिए या इलेक्शन के पहले। इसका कोई एस्टिमेट नहीं है, एस्टिमेट को ना देखते हुए रूलिंग में है, पावर का गलत यूटिलाइज कर रहा है। जब एक कैंडिडेट जब एक नॉमिनेशन फाइल कर देता है तो वो चुनाव आयोग का दायरा में आ जाता है, उसका गाइडलाइन मान के चलना चाहिए। हम लोग जैसे गाइडलाइन को मानते हुए हैं। आज ने आप 45 वर्ष की आप अभिज्ञता है, आपको मालूम है कि राजनीतिक में क्या होता है, लेकिन ये गलत ढंग से, हम भी चाहते हैं अपना वार्ड का विकास हो, हम भी चाहते हैं अपना वार्ड का तरक्की हो, लेकिन एक तो बात बता देते हैं, आपने 5 बरस यहाँ का चेयरमैन रह चुके हैं 106 वार्ड का, 5 बरस आप डिप्टी मेयर रह चुके हैं, 1 बरस एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं। आपको उस समय नजर नहीं आया कहाँ पर विकास होना चाहिए, बाजार का सुंदरीकरण कैसे होना चाहिए, ये आपको नहीं मालूम, उस समय नजर नहीं खुला। आप यहाँ का जब प्रार्थी हुए, यहाँ का कैंडिडेट हुए, तब आपको ये नजर खुल रहा है कि यहाँ विकास होना चाहिए। उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? कोई बात नहीं है, ठीक है, आपने यहाँ का प्रार्थी हुए, जब आप नॉमिनेशन फाइल कर दिए, नॉमिनेशन फाइल करने के बाद आप चुनाव दायरा के अंदर आ जाते हैं, चुनाव आयोग के अंदर आते हैं, उसको गाइडलाइन को मान के चलिए। लेकिन आज रूलिंग में है, इनका पावर का गलत यूटिलाइज कर रहा है। आप देखिए घाटी गली में ढलाई किया कल बिना एस्टिमेट का, कोई एस्टिमेट नहीं है घाटी गली में जो ढलाई किया है चुनाव घाटी के पास। आप देखिएगा करीब 40-50 तो लाइट लगाया है, जहाँ मस्जिद गली में, इधर गली में, सारा गली में लाइट लगाया है, 40-50 तो जहाँ तहाँ लाइट लगाया है। आप एक तो बात बताइए, जब आप चुनाव जब डिक्लेयर हो गया है, हम लोग पावर में नहीं है, जबरदस्ती हम लोग को पावर दिखाकर ये लुभाने सोच रहा है, हमारे वार्ड का जनता को लुभाने का तरीका सोच रहा है। हमें एक बात बता रहा हूँ, यहाँ के वार्ड के कुछ लोग जो यहाँ के वोटर्स नहीं है, बाहर के हैं, वो लोग इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि मेयर होगा, मेयर होगा, मेयर होगा। मैं एक तो बात बोलना चाहता हूँ, अगर इन्होंने मेयर होगा, इनकी पार्टी के हाईकमान, इनके पार्टी के लीडर या ममता बनर्जी जी वो ऐलान कर दे कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेयर अमरनाथ चटर्जी होगा, मैं वह खबर दे दूंगा। यहाँ पर उनका पार्टी की तरफ से ऐलान कर दे कि अगर ये मेयर होगा, ये मेयर का लुलुत्फ दिखाकर, मेयर का लॉबी दिखाकर हमारे वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने का तरीका अपना रहा है। लाइट का एस्टिमेट नहीं है, जहाँ तहाँ रास्ता ढलाई कर दे रहा है। इसके लिए मैं चुनाव आयोग का कंप्लेंट करूंगा। हम लोग का एक सिस्टम होता है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग ये सब कंप्लेंट करने का पहले हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का जिला आला कमान है, मैं उसको ये जानकारी दूंगा, उसके बाद उन्होंने चुनाव आयोग का कंप्लेंट करेंगे। मेरा नाम शिव प्रसाद वर्मन, हम 44 नंबर वार्ड के प्रार्थी। उस समय डैमेज हुआ था, उस समय हम लोग रिक्वेस्ट करके इस रोड को बनवाने के लिए दिया,
अभी गंदा पॉलिटिक्स कर रहा है। ये वर्क ऑर्डर 27/9 का बना हुआ है रिपेयरिंग का। उसके बाद ये गुंडागर्दी जोर जबरदस्ती अगर ये कर रहा है तो जोर जबरदस्ती पारा 44 नंबर पारा का पब्लिक नहीं सुनेगा। पूरा रोड हम लोग ब्लॉक कर देंगे पब्लिक, और पूरा पब्लिक आके देखे कि 44 नंबर वार्ड का बीजेपी का काउंसलर किस तरह का गुंडागर्दी कर रहा है। बीजेपी के प्रार्थी, हाँ बीजेपी का प्रार्थी, वो हर काम में अड़ंगा लगाता है। उस दिन कमल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उस दिन भी मेरा माँ का बरसी था, वो बोला ढोंग कर रहा है। ये क्या चीज़ का नियम है? उसको सब चीज़ ढोंग लगता है। बड़ा का कोई तरक्की नहीं है। 20 साल तक कहाँ था वो काउंसलर? 5 बार काउंसलर हुआ, कभी रिपेयरिंग हुआ? 3 बार काउंसलर यहाँ का कोई कभी रिपेयरिंग किया, कुछ किया? उसके बाद अगर आज रिपेयरिंग हो रहा है हम लोग का प्रोसेस से, हम लोग का पब्लिक का डिमांड से हो रहा है सब काम, उसमें भी ऑब्जेक्शन लग रहा है। जब इस बारे में अमरनाथ चटर्जी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि एनएस रोड की मरम्मत के कार्य का वर्क ऑर्डर पहले ही पास हो चुका है। शिव प्रसाद बर्मन नहीं चाहते हैं कि इलाके के लोगों का विकास हो। না না, ও তো মিথ্যে কথা বলার অভ্যাস। এতে আসানসোলের বাজারের মানুষ এবং কর্পোরেশনের লোক সব জানে, এবং আসানসোলের মানুষ যারা ঠকেছে তারা আরও ভালোভাবে ওনাকে বেশি করে চেনে। তো আমি সরকার পক্ষের লোক নই, আমি এখন নিরপেক্ষ লোক, আমি এখন পার্টির লোক, তৃণমূলের লোক। তো কোনো আনডিউ অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হচ্ছে না। এই ওয়ার্ক অর্ডারগুলো আগে থেকেই পাস করা আছে। উনি জানেন না, আসল খোঁজ খবর রাখেন না, তো এলাকাবাসীর কথা উনি মনে রাখেন না এবং জানেনও না। সেই জন্যই বলি আপনাদের, এই এনএস রোডটা এখনও বিল হয়নি। এই এনএস রোডটা বর্ষা যেটা হলো, এই বর্ষার সময় এই এনএস রোডটা ভেঙে গেছিলো ওই জায়গাটায়। তো ওই কন্ট্রাক্টারই এখন এখানে করার কথা, ওই কন্ট্রাক্টারই অন্য কোনো কন্ট্রাক্টারকে দিয়ে করাতে চাইছে। তো উনি সেটা করতে দেবেন না, কারণ উনি তো এনএস রোডের মানুষকে ভালোবাসেন না। উনি তো এনএস রোডের মানুষের ক্ষতি চান, অ্যাক্সিডেন্ট হোক, কারো পা ভেঙে যাক, কেউ মিশনে যাক, কেউ হেলথ ওয়ার্ল্ডে যাক, তো এইসবই তো উনি চাই। তো আমি কী করবো তার জন্য? আমি তো ধরুন রিপেয়ার করার কথা কন্ট্রাক্টরকে বলেছিলাম। উনি যদি চাই যে এনএস রোডের মানুষের ভালো না হোক, তো আমি কিছু করতে পারবো না। তবে নির্বাচনের পরে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। এবং আমাদের যেটা কর্পোরেশন ছিল, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এখানে বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় উন্নয়নের জন্য সমস্ত কাজ পাস করিয়েছে, এবং সেটা আমরা রাহালেনের ময়দান থেকে পাস করিয়ে ওয়ার্ক অর্ডারগুলো আমরা ওখান থেকে চালু করেছিলাম। ওনাকে একটু খোঁজখবর নেওয়া দরকার আছে। তো এই ব্যাপারে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে, তো আমি মানুষকে অনুরোধ করবো যে আপনারা বিভ্রান্ত হবেন না। যে কোনো কাজই মানুষের উন্নয়নের জন্য কাজ। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. इन दिनों प्रशासनिक गतिविधियों में दो क्षेत्रों में ज्यादा हलचल देखी जा रही है। पहली, नगर निगम चुनाव के दौरान विभिन्न वार्डों में नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच की उलझन सुलझाते हुए पुलिस देखे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोयला तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए। अभी 2 दिन पहले ही कुल्टी थाना पुलिस ने बंगाल झारखंड सीमा के डिबूडी चेकपोस्ट से अवैध कोयले से लदे 14 ट्रकों को जब्त किया था। वहीं गुरुवार की सुबह भी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के सलानपुर थाना पुलिस ने कोयला तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बार फिर नेशनल हाईवे 19 से अवैध कोयले से लदे 12 ट्रकों को जब्त किया, जिनमें से 7 ट्रक चालक मौके से गिरफ्तार किए गए और 5 ट्रक चालक मौके से फरार होने में सफल हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अभियान चलाकर झारखंड से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में जा रही कोयले से लदे ट्रकों के कागजात की जांच में पाया कि सभी के कागजात जाली हैं, जिसके बाद सभी कोयला लदे ट्रक पुलिस ने जब्त कर सलानपुर थाना परिसर ले आई। बताया जा रहा है कि सभी ट्रक झारखंड के गोविंदपुर सहित अन्य क्षेत्रों से लोड किए गए थे, जिसे बंगाल के दुर्गापुर स्टील प्लांट सहित अन्य क्षेत्रों में खपत के लिए भेजा जा रहा था। गुप्त सूत्रों के अनुसार आज जितने भी ट्रक पकड़े गए हैं, उनमें से एक ट्रक झारखंड में अवैध कोयला सिंडिकेट को चला रहे एक कथित व्यक्ति के नाम पर बताया जा रहा है। इस तरह आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने अब तक कोयले से लदे 26 ट्रक सहित 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। এখন কয়লা মাফিয়ারা কয়লা এই রাজ্যে নিয়ে আসছে বিভিন্ন জেলায় এবং জাল নথি করে নিয়ে আসছে। বিভিন্ন কয়েকদিনে তো অভিযান চালিয়ে প্রচুর ট্রাকও ধরা পড়েছে কয়লা বোঝাই। এটা আমার এডিপিসিতে ইনক্লুডিং ওয়েস্ট জোন এটা আমার সবসময় নজর আছে। এখানে ইলিগাল কোল মাইনিং और ইলিগাল কোল ট্রান্সপোর্ট উপরে আমার সমস্ত নজর আছে। এটা খবর পেলে পুলিশ লিগাল
ভাবে এটা অ্যাকশন নিচ্ছে। স্যার 2-3 দিনে কতটা ধরেছেন স্যার? কতগুলো ট্রাক ধরা হয়েছে? এটা টোটাল অ্যারাউন্ড 32 ট্রাকস। কোথা থেকে আসছিল এই লরিগুলো? এরা ঝাড়খণ্ড বিভিন্ন জায়গা থেকে, নিরসা, মুগমা, গোবিন্দপুর, ধানবাদ বিভিন্ন জায়গা থেকে এরা লোড হয়েছে। এগুলো স্যার অবৈধ কয়লা কি স্যার? এটা পুলিশ ওদের কাছ থেকে কোনো প্রপার ভ্যালিড পেপারস পায়নি। এটা পুলিশ এটা কেস করেছে, কেস করে এটাকে তদন্ত করছে। জাল নথি নিয়ে তারা এই লরি কয়লা পাচার করছিল। পুলিশ ওদের কাছ থেকে ভ্যালিড পেপারস পায়নি, ওর উপরে এটা কেস করা হয়েছে, পুলিশ ইনভেস্টিগেশন করছে। অ্যারেস্ট হয়েছে কি এটাতে কেউ? এটাতে जो ड्राइवर्स या फिर खलासी या ओनर्स जो স্পটে পাওয়া গেছে ওকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে। থ্যাংক ইউ।